with us, we have Kanishka Jurani at Divine Spaces Events. Uh, Kanishka connected to our group when, during the pandemic, I posted the link everywhere. I told my friends, everyone, wherever you can post it, whoever needs this healing, please tell them to join the group and they can share their names and I'll keep giving them distance healing. So this was the process which had started it. And Kanishka joined in this group through one of my friend's status group she saw and she just felt and she joined in. So during the healing session, I used to get lot of messages, angel messages, which I used to just write it down and put up in the group that, this is the message for this person, that person. But when there was one healing which was totally different that day. During the healing, I continuously felt a small child, very smiling face is continuously around me and giving me some messages, giving me messages for some person and specifically telling me the name of a person and telling this message to give to this person. So though I felt very weird because I used to not go in for mediumship, but okay, that day I got that message. And of course, I understood it later because when I put it in the group that whoever, it's relating into, but these are the messages. And then there was a turn of the journey, yes. I came to know about it. Okay, this was Kanishka who had just lost her child during this pandemic itself. Just 1 year old child who was like couldn't get treatment on time, so the child expired in a lap itself. So, and having another daughter who is also looking at it and she's totally unaware what is happening, why mommy is behaving this way, why my younger sister is not responding. She used to play with her. So she also went into depression, not eating food or not doing anything. So there was a lot of, pandemic time, already lot of chaos and this situation at home. So a very touching story was of hers. Of course, she came out of it, all of it. Now she's doing very well in her life. And she has delivered one more baby, which is like pretty like her only. So we'll hear from her today. How is she doing now? So let's connect to Kanishka Jurani. Today we have with us Kanishka Jurani. Okay? So previous name was Renu, but now she's known as Kanishka. So welcome, Kanishka. Thank you, ma'am. I'll just give you a brief introduction about Kanishka. Kanishka has been a very old member of Golden Sunrise. In fact, when during my starting distance healing sessions for the group during that pandemic, and knowing something new about myself was due to her only. It was one of the very different feeling. I can still remember those messages which I put in the group and then getting one voice call in my WhatsApp with a cry and asking me questions. And then we had a long talk and then I helped her during that trauma time in whatever way I could. Yeah. So, but I would like her, would like you all to hear from her only, her story, her experiences. So we will hear more from Kanishka. Brief about her, what she does. She's by profession, she's a teacher. Previously, she was in Dubai, but now she has come back to India in Ahmedabad. And she has also done Reiki level 2. So welcome, Kanishka. Welcome to this wonderful world of divine souls. So, Kanishka, I would like you to, share a brief about your journey, your transformation journey, your incidences, some which you would like to really share about your healing, your being a teacher, and how you got connected to Golden Sunrise. सो सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बहुत सारे रास्ते दिखाए, हर मुश्किल में आपने मुझे हेल्प की है और आपने मतलब जो भी मेरे सवाल थे उनके जवाब मुझे आपसे ही मिले हैं। पता नहीं मेरा आपसे कनेक्शन कैसे हुआ है, कह सकती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे शायद आपसे मिलवाया है, सही है। क्योंकि मैं
मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल हुई है, लेकिन अभी मेरी जर्नी जो स्मूथ हुई है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, द वे यू हेल्प मी, द वे यू गिविंग मी हीलिंग, एंड जो भी मेरा स्ट्रेस है, जो कुछ भी है, सब आपने सॉल्व किया है। सो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत थैंक यू मैम। तो मेरी आफ्टर मैरिज लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे चलती है। पहले मैं अफ्रीका में थी, फिर वापस इंडिया आई, फिर दुबई गई। सो दुबई में मैं थोड़ा स्टेबल थी, लेकिन वहां पे शायद मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हो गए थे। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा दुबई में। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि बस मेरे को ऐसे ही एक रास्ता दिखा कि जस्ट अभी मुझे सुसाइड ही करना है, बस मैं खत्म कर दूं अपने आप को। लाइक बहुत मैंने हार्डशिप्स देखे हैं वहां पे। पता नहीं, मैं उस दिन भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि या मुझे रास्ता दिखाओ या कुछ करो मेरा, अदरवाइज आई डू समथिंग। एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड ऑल्सो। उसके बाद तो मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। तो उसके बाद जैसे ही पता नहीं ये ग्रुप कहाँ से मुझे ज्वाइन हुआ, शायद गॉड ने भेजा होगा आपको मेरे पास। कहते हैं ना, सब जगह भगवान नहीं आ पाते हैं, तो किसी न किसी की मीडियम के थ्रू ही हमारे पास आते हैं। तो इतने आप पता नहीं कहाँ से मेरे पास आ गए, गोल्डन सनराइज ग्रुप मुझे मिला। उसके बाद आपसे मेरी कन्वर्सेशंस हुई। धीरे धीरे मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, आप मेरी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। तो उससे मुझे काफी काफी फायदा हुआ। अगर आज मैं हूँ ब्लेस्ड, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रुप एंड यू। और मेरी डॉटर्स के लिए भी मैं बहुत परेशान रहती थी, तो आपने मुझे जैसे जैसे वे बताए, जो जो रेमेडीज बताई, वो मैं करती जा रही थी। तो उससे भी मेरी डॉटर्स को भी काफी फायदा हुआ है। बस आफ्टर कमिंग बैक टू अहमदाबाद ऑल्सो, मेरे को थोड़ी यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी टू अंडरस्टैंड, लाइक कंफ्यूजिंग माइंड रहता था। तो उस टाइम में मैंने लाइक आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया, लाइक आपसे कॉन्वर्जेशन हो गई, कार्ड रीडिंग हुआ था, याद है सेशन हुआ था एक कार्ड हाँ, रीडिंग में। ओके, या तो मैंने पता नहीं कैसे मैंने वो ज्वाइन किया कार्ड रीडिंग सेशन, या क्या आपने मेरी उस टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। सो जस्ट थैंक यू मैम। मुझे मुझे अभी तक याद है, लाइक क्योंकि मैं आपका इंसिडेंस तो भूल भी नहीं सकती, क्योंकि ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, हीलिंग वगैरह करती थी, बट मैं मीडियमशिप कभी नहीं करना चाहती थी। लाइक मीडियमशिप मैं करती नहीं थी कि किसी को बुलाओ करो एंड किसी का ये मैसेज पास करो, वो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे ये सब चीजें नहीं जाना है, इनमें सिर्फ हीलिंग हाँ है, हाँ। ठीक है। बट वो हाँ पेंडेमिक लेकिन के टाइम पर जो हीलिंग में जो बच्चा आया, जो बच्चा मेरे से बातें क्योंकि मैं मैसेजेस लेती थी, जो एंजल्स के यस मैसेज थे यस, और लोगों को हाँ देती थी एंजल्स के हीलिंग में थ्रू, ग्रुप। हाँ हाँ। वो बच्चा की जो फील जो स्ट्रांग थी, मैंने फिर स्ट्रॉन्ग वो थी। डाल दी ग्रुप में, बस के मुझे नहीं मालूम हाँ, कि कहाँ से पहली बार ऐसे हो। एंड मैं तो शॉक में हो गई जब आपने मुझे मैसेज किया वॉइस कि मैसेज पे। आपने वो बच्चा देखा, वो कैसा दिखता था, कैसा था, ये था वो था, आपने फोटो भेजा, फिर हम लोग का कनेक्शन हुआ। एंड कनेक्शन हुआ आपका क्योंकि रोता हुआ सुन के मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा आप है। एंड फिर जब आपने अपनी पूरी कहानी बताई कि लाइक लॉकडाउन में आप अपने बच्चे का कुछ नहीं कर पा रहे थे, लाइक कि डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पाए टाइम पे, और आपका जो हुआ नुकसान, और लाइक और जो बेटी तो एक गई, लेकिन दूसरी बेटी पे भी जो बुरा असर हुआ, आप तो खुद एज अ मदर जो डिप्रेशन में गए थे, और दूसरी बेटी जो छोटी थी उसको भी नहीं समझ में आ रहा था उसको कि भी, हो क्या रहा है, हाँ, मेरी बहन कहाँ गई जिसके साथ मैं खेल रही थी। पूरी फैमिली मेरी शैटर्ड हो गई थी लाइक। एंड मैसेजेस बिल्कुल एक्यूरेसी में आ रहे थे, नाम के साथ आपकी छोटी बेटी के लिए। एग्जैक्टली उस टाइम जो आप मैसेजेस भेजते थे ना कि समवन इन द ग्रुप इज हैविंग दिस, चाइल्ड इज क्राइंग, सम चाइल्ड आई लिसन, तो वो सारे मैसेज ऐसे लगता था कि मेरे ही है, लाइक मेरी ही वहां पे सब कॉन्वर्जेशन जा रही है या क्या। मतलब इतना क्लियर तो मैंने, लाइक बेटी खाना नहीं खा रही है तो वो इन मैसेज दे रही है कि खाना खा लो, अभी तुम आगे बढ़ो जिंदगी में। तो हाँ, काफी काफी अच्छी, लाइक काफी काफी सारे, हाँ। हाँ। एंड दूसरी बात, जब आपकी लाइक ऑफकोर्स इतने टाइम के बाद जब आपको फिर आप फिर से जब बच्ची हुई आपको, हाँ, तभी भी तभी भी कोइंसिडेंटली मैं, क्योंकि हीलिंग्स के लिए हम अलग अलग क्रिस्टल निकालते, तो एक क्रिस्टल, सेक्शन, आपकी हाँ प्रेगनेंसी अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ।
वो भी कार्ड आया, तो वो भी क्रिस्टल आया था, तो मैंने बोला किसी के लिए आया है तो प्लीज वो इंश्योर करें उनकी प्रेगनेंसी सब अच्छी जाएंगी, स्ट्रेस नहीं। हाँ। आपने बोला मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तो 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 मैम ऐसे लगता है कि आपका और मेरा रिश्ता है ना पिछले जन्म से या कई जन्मों से चलता ही आ रहा है। लाइक किसी न किसी तरीके से आप और मैं कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, ये अच्छा है, लाइक लाइक एज अ मदर आप मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जो समझाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। लाइक ऐसे लगता है कि मैं किसी भगवान से बात कर रही हूँ या क्या। मैं तो बस जो मुझे मतलब मैसेजेस आते हैं मैं वही देती हूँ, लाइक जितना मेरे पास जो नॉलेज रहता है, और जो मैसेजेस ऑन द स्पॉट जो आते हैं उस टाइम, हीलिंग के टाइम पर मुझे कुछ नहीं रहता, मैं सिर्फ पेपर पेन साइड में रख देती हूँ, लिखते जाती हूँ जो हाँ। लिखते हैं, तो वो फिर मैसेज डाल देती हूँ। कभी कभी हाँ बिल्कुल नामों के साथ आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े मिक्स्ड कंफ्यूज भी आते हैं, फिर वो मिक्स हो जिसके लिए जाता हो है। जाता है वो अपना पकड़ लेता है, हाँ। ऐसे होता है। और एक आध बार हुआ था ऐसा भी इंसिडेंट के, कोई एक ग्रुप में नहीं था बट ग्रुप में आना चाहता था, ओके। तो ऐसा भी हुआ था। तो वो मैंने नाम डाल दिया था, फिर किसी ने फ्रेंड ने बोला, मेरे एक फ्रेंड है, उसने 2 दिन के बाद उसने उसको कॉल किया कि मैं ग्रुप में आना चाहती हूँ। तो ऐसी चीजें होती हैं, लाइक तो आप अभी क्या करती हैं, लाइक आप अभी मैं ट्यूशंस करवाती हूँ बच्चों ओके। को। हाँ। एक्चुअली जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना कि छोटे बच्चे हैं तो उनको छोड़ नहीं सकती हूँ, तो घर पे ही लाइक एज अ ट्यूशंस मेरी चालू होती है। मेरी क्लासेस चलती है यहाँ पे। ओके, तो आप लाइक अभी इधर अहमदाबाद में आप टीचिंग वगैरह सब करते हैं बच्चों को? यस यस यस, मैं प्रोफेशन मेरा शुरू से ही टीचिंग का ही था। अच्छा, आप पहले से टीचर रही हैं? हाँ हाँ, टीचर ही थी। ओके, वाह। तो टीचिंग में कैसे इंटरेस्ट आया आपको, या ऐसे ही आप कैसे आया? टीचिंग में एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को करना था लाइक कुछ एमबीए वगैरह, लेकिन कुछ सरकमटेंसेस की वजह से मैं कर नहीं पाई। तो हाँ। मेरी मदर ने मुझे फोर्स किया कि डू बीएड, एंड एज अ टीचिंग भी कर सकते हो या घर पे भी पढ़ाना हो तो तुम पढ़ा सकती हो। हम्म। अगर बाहर भी जॉब करना हो तो कर सकती हो। तो माय मदर पुश मी टू डू बीएड आफ्टर मैरिज। ओके। तो मैंने वो कर लिया बीएड। और उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी जॉब के लिए। तो उस टाइम भी मेरा बेबी छोटा था, तो हम्म। नोबडी वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। तो भी मैंने घर पे ही फिर क्लासेस चालू कर दी। तो मेरा फिर घर से अच्छा होने लग गया। देन आई शिफ्टेड टू दुबई। लाइक हस्बैंड का वहां पे जॉब लग गया, तो फिर हम वहां शिफ्ट हो गए। तो वहां मैंने फिर स्कूल में टीचिंग करवाया। ओके। वहां पे फिर मैं स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन वहां पे भी कुछ सर्कमटेंसेस हो गए, हमारे वीजा वगैरह के इशू चल रहे थे। तो हम्म। बहुत मतलब नहीं हो पा रहा था, फिर बहुत स्ट्रगल देखा वहां पे। तो उसके बाद फिर तो, और फिर यहाँ फिर हमें वापस भी आना था, क्योंकि यहाँ पे फिर पेरेंट्स थोड़े हेल्थ इशू हो गए था पेरेंट्स को। तो फिर मैंने बोला चलो फिर वापस ही चलते हैं। सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ अवर पेरेंट्स। लाइक अर्निंग थोड़ी स्लो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट सब साथ में तो रहेंगे फैमिली वाले। तो हमने ये डिसीजन लेके फिर हम वापस यहाँ आ गए। ओके। फिर यहाँ पे भी मैंने टीचिंग ही स्टार्ट कर दिया। वेरी नाइस। हाँ। तो देखो, आपकी मम्मी ने एक बात कही, आपने मान ली तुरंत, एंड आपकी लाइफ की जर्नी में कितना हेल्पफुल हो गया वो आपको। कभी यस। कभी कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है, होता कुछ एंड और है, हाँ। फिर जब आगे बढ़ते तब रियलाइज होता है ये इसके लिए हुआ था। यस। तो आपके टीचिंग के एक्सपीरियंसेस में कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, लाइक कोई बच्चे का आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने ही बच्चों का? बच्चे तो मेरे जो मैं पहले पढ़ाती थी अभी काफी अच्छी वो पोस्ट पे मतलब जॉब करते हैं। लाइक वो कुछ टीचर्स बन गए हैं, कुछ अच्छा। एमबीए में चले गए हैं, ऐसे गए हैं। तो अभी भी आते हैं मुझे गुरु पूर्णिमा पे, बोलते हैं कि मैम बिकॉज ऑफ यू वी रीच हियर, वी रीच देयर। मैंने कहा इट्स गुड कि आप मतलब गिविंग नॉलेज इज बेटर। और मैं बहुतों को फ्री में भी पढ़ाती हूँ, लाइक जिनके पास नहीं होते हैं तो मैं उनको भी फ्री में करती हूँ। बिकॉज मेरा माइंड ऐसा नहीं है कि जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू अर्न मनी। माई थिंकिंग इज टू गिव, गिव नॉलेज, स्प्रेड नॉलेज। बिकॉज एज अ टीचर हमको यही सिखाते हैं कि जितना नॉलेज स्प्रेड करोगे आपके लिए अच्छा है, कि उनकी उतनी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। सही बोला आपने, काफी काफी सही बोला ये। हम्म।
मैम पॉजिटिव हाँ, रहते हैं हम लोग, लेकिन क्या हम्म, है ना कि लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कि स्टक हो जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि शायद हमारे घर में लाइक नो आसपास जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनकी वजह से भी हम लोग को भी थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। तो उस वजह से क्या है ना कहीं हम लोग स्टक हो जाते हैं। समझो अब मेरी राशि अच्छी चल रही है, मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वही ऑपोजिट मेरे हस्बैंड के अच्छे नहीं चल रहे हो, तो घर में भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो ड्यू टू सम रीजंस क्या होता है ना कि हम लोग मैं बहुत स्टक हो जाती हूँ, मतलब ऐसे लगता है कि वाई मी, बिकॉज आई डिजर्व मोर देन दिस। तो अभी तो मैंने ये सब सोचना बोलना छोड़ ही दिया है कि वाई मी, आई डिजर्व दिस मोर, दिस दिस दैट। अब ऐसे लगता है कि वॉट एवर आई हैव आई एम हैप्पी, एंड आई ऑलवेज ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पीपल हु आर इन माई लाइफ, इन माई सराउंडिंग। लाइक सबका मैं शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। बीच में आपने ग्रुप में मैसेजेस डाले थे ग्रेटिट्यूड्स के, अलग अलग ना, हम्म, आज इनको ग्रेटिट्यूड करो, आज हाँ, लेबर्स को करो, आज जिन्होंने आपके साथ जो किया है, सो इट्स वेरी हेल्पफुल। लाइक ये सब जो आप हमको करवाते हैं ना टीचिंग्स, ये हम फॉलो अप भी करते हैं ना, तो बहुत हमारे रास्ते खुल जाते हैं। एक लाइफ को समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमको लाइफ में चाहिए क्या। लाइक बोलते हैं ना, वो मोह माया से हट जाओ। हम्म, तो बस वो मोह माया हटते ही जा रहा है। लाइक गॉड से हम जितना कनेक्ट होते जा रहे हैं, हमारे ऐसे लगता है कि नाउ वी आर अ प्योर सोल। एक अच्छा सा शांत ठहराव आया है लाइफ में। वरना पहले तो ऐसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्रीनेस, बस ये मुझे चाहिए मतलब चाहिए, अब ये सब नहीं होता है। लाइक एक चेंज हो गया है। लाइक हीलिंग करके, रेकी सीख के, आपसे कनेक्ट होके, जो आप जो बताते हैं ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो, फॉरगिवनेस दो, आ, तो इन सब से बहुत लाइफ में हेल्प मिली है। लाइक अब ऐसे लगता है कि हाँ भाई, नाउ द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। सो एवरी चाइल्ड शुड कम इन द वर्ल्ड विदाउट क्राइंग, बिकॉज बच्चा आता है ना, पैदा होता है तो रोता ही है। अब ऐसे लगता है कि रोना नहीं चाहिए बच्चे को, हंसते हंसते आना चाहिए। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल सराउंडिंग अस, सो ऑल शुड बी हैप्पी इन अवर लाइफ। चलो बोलते हैं यूनिवर्स को। क्या वो एक पहली साइन होते ना, बोलते हैं कि अगर सी बनाया कितना तरीके के, जब पैदा होता है तब वो बच्चा रोता है, जब इंसान जाता है तब दुनिया रोती है। दुनिया रोती है, एग्जैक्टली। तो वो कनेक्शन कितना अलग है, सोचो ना कि। और जब पैदा होता है, जब तो हम अगर बच्चा रोएगा नहीं तो सब परेशान होते हैं, बच्चा रोया नहीं, इसको मारो और रुलाओ। बाहर हाँ। एंड बाद में टोटली ऑपोजिट होता है। सो दिस इज लाइक अवर लाइफ सर्कल विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस। लेकिन अच्छा है, लाइक उस रोने में भी वो हंसी है, वो खुशी है। हाँ, वो भी खुशी है। कभी कभी रोना भी अच्छा होता है मैम, जैसे कि अंदर से स्ट्रेस निकल जाता है। लाइक जो भी ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, रोने से भी मन हल्का हो जाता है। लाइक कभी कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी को अपनी बात या क्या, तो अगर हम रो भी लेते हैं ना तो हमें अच्छा फील होता है। तो इट्स अ गुड साइन टू क्राई ऑल्सो। ये आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बच्चा क्यों रोता है। वो भी तो 9 महीने पेट में रहा है ना। क्या है। अंदर से इधर उधर जा रहा वो भी बता रहा है ना कि मैं आ रहा हूँ दुनिया में, वेलकम ऐसे करो मेरा। बोल के। है। काफी। तो आप काफी टाइम से रहे हैं गोल्डन सनराइज में, आपने काफी चीजें अटेंड भी हाँ, की, सेशंस। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया था। मेरी दुबई में 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन कराया था। सो दे वर ऑल्सो गेटिंग देयर आंसर, दे वर ऑल्सो फीलिंग गुड। अभी भी है वो ग्रुप में शायद, थोड़े ऑफ मेंबर्स हैं, बट दे आर सीइंग द मैसेज एंड एवरीथिंग। हाँ, क्योंकि हर कोई एक्टिव नहीं होता ना, हर एक का नहीं होता, अलग हाँ। अलग तरीका होता है, कोई अलग अलग passive में, तरीका कोई होता है, एक्टिव हाँ। में, तो सब कोई करता है। कोई कोई ग्रुप में नहीं करते, कोई बिल्कुल पर्सनली मुझसे पर्सनली शेयर आके करते करता हैं, है, तो वो हाँ। ऐसे होता है। तो हर तरह के लोग होते हैं। ये ग्रुप हाँ है भी ऐसा, काफी मिक्स्ड, काफी अच्छा है, लाइक मैम, एक गेट टुगेदर रखो अभी आप, जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं सब आके कहीं पे मिले, लाइक सब वही कह रहे हैं, नहीं हमारा प्लानिंग में है अभी ओके। तो है अभी सब। क्योंकि इसलिए तो अब सबके व्यूज और चीजें समझने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि और क्या अभी हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत तो एक अलग की थी, लेकिन डाइवर्शन अभी काफी हो गए हैं, अच्छी चीजें आ गई हैं। हम्म। तो थोड़ा और
और ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए वही सब अभी चल रहा है। यस। तो आपके तो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं इधर गोल्डन सनराइज? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। लाइक काफी मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है अपनी लाइफ में। लाइक ग्रो भी हुई हूँ मैं। एक चेंज भी आया है मेरे नेचर में। एक दुनिया को देखने का नजरिया भी मेरा काफी बदल चुका है। सो मुझे तो काफी इम्प्रूवमेंट मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ गोल्डन सनराइज। तो आप एंड बोलिए एंड जो बोलिए। स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज भी होती है ना, तो उसमें भी मजा आता है करने में। हाँ। लाइक भले एक्टिव नहीं रहते हैं, पर तो भी देखते हैं, देखते करते रहते हैं। कभी कभी एक्टिव मतलब डालते भी हैं हम लोग भी कि पार्ट लें इसमें। उसमें भी मजा आ जाता है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, लाइक बोले, हम बोलते ही नहीं है लेकिन उसका आंसर ऑटोमेटिक उस ग्रुप में से मिल ही जाता है। आई लाइक है। एक पॉजिटिव ग्रुप है हमारे लिए वो बहुत। तो आपके आप और क्या आप चाहते हैं इस ग्रुप से, और आपके क्या हैं और एक्सपेक्टेशंस? अ, बस यही चाहूंगी कि सारे मेंबर्स एक्टिव रहें, सबकी लाइफ अच्छी हो जाए, और सब हैप्पी रहे बस। मैम, अभी जो भी है ग्रुप में मैं सेटिस्फाइड हूँ फुली। तो आप आपने रेकी भी किया है तो उसे आपने परस्यू नहीं किया है? रेकी कुछ कर रहे हैं उसके लिए, या सेल्फ हीलिंग या किसी को हीलिंग कुछ कर रहे हैं? मैं हीलिंग्स देती हूँ। लाइक कोई पेन में होता है या क्या, तो मैं हम्म। उनको हीलिंग्स देती हूँ। या कभी मैं मुझे पेन कहीं होता है तो उसमें हीलिंग्स देती हूँ। या कभी मुझे ऐसे लगता है ना कि ये मेरा काम हो जाए, या मुझे इसमें थोड़ा आगे बढ़ना है, या हम्म। मेरा कोई सवाल होता है या क्या, तो उसमें भी हीलिंग करती रहती हूँ ऐसे। सिर्फ पेन के लिए नहीं होता हीलिंग, बट बाकी जैसे लाइफ में और आगे बढ़ना है। लाइक मेरे स्टूडेंट्स थोड़े बढ़ जाएं, या मेरे बच्चों के एग्जाम्स अच्छे जाएं, उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो उनमें भी मैं यूज करती रहती हूँ ये। लाइक औरों को भी जिसको हेल्प चाहिए होती है तो उनको भी मैं हील करती रहती हूँ ऐसे। लाइक कोई जॉब पे जा रहा है, किसी को इंटरव्यू में नर्वसनेस हो रही है, तो चलो उनको ही मैंने रेकी दे दिया कि उसका इंटरव्यू अच्छा जाए और नर्वसनेस कम होए, पास हो जाए, जैसे वो अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर दे अपना वो, ऐसे। तो कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं मेरे कि जो नर्वस होते हैं, मैम हमको नहीं आ रहा है, हमको टेंशन हो रहा है या क्या, तो हाँ। उनको भी मैं हील देती हूँ ओके। ऐसा। चलो। मुझे सीखना है आगे थर्ड डिग्री भी। हाँ, मैं बट वही अभी बोलने वाली थी कि आप हाँ, अब थोड़ा आगे भी कीजिए। आगे जाना है, मुझे मास्टर्स भी करना है। बट देखते हैं नेक्स्ट ईयर। हम्म। अच्छा है, लाइक क्योंकि अभी आपने काफी किया है, अभी थोड़े और लेवल पे जाएंगे तो आप और लेवल पे, और हाँ। लाइक किसी के क्रॉनिक इश्यूज भी हैं, कुछ हैं, तो उनमें भी आप हाँ हाँ थोड़ा हाँ हेल्प कर सकते हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग का भी करा सकते हैं लोगों को, है ना? हाँ। फिर ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर टीचर तो है ही, आपके टीचर की खूबी तो है ही, तो रेकी हाँ। टीचर भी बन जाइए। ऑफ कोर्स जब बस अब, टाइम क्लिक हो जाता है तो होता है, बट कीजिए, मैं सजेस्ट करूंगी। या डेफिनेटली आई विल डू, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप ना, मुझे मेरा एक नेचर अभी ऐसा हो गया है कि हेल्प करते रहो बस। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, अपने आप मिल जाएगा। बहुत सही कहा आपने ये बात, क्योंकि ये समझ जाए हर एक इंसान तो काफी चीजें इजी हो जाती है लाइफ। सही हो जाए, सही है। क्योंकि जब हम लोग एज अ हीलर भी हम सिखाते हैं लोगों को कि अगर आप अ, जो आउटकम है उस पर अटके रहेंगे तो आप खुद ही एनर्जी को उसके ब्लॉक करते हो, हाँ। वैसा है। तो ये सही है करके। हम्म। काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू। ठीक है, मेरे ख्याल से हम मिले तो मतलब ऐसे फोन पे ही हमारी बातें हुई है, सेशंस में ही हुई है, मिलना ऐसे रूबरू बातें आज पहली बार हुई है। पहली बार हुई है, हाँ। तो काफी अच्छा लगा, एंड ऑफ कोर्स आप इसी तरह अपना कंटिन्यू करते रहिए चीजें, बहुत अच्छे से आप जिस तरह से कर रहे हैं, और यू नो इम्प्रूवमेंट भी आपकी होती रहे। एंड आई एम रियली थैंकफुल कनिष्का फॉर गिविंग योर टाइम, एंड अपने इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स थैंकिंग यूनिवर्स जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप लोग सबसे बातें करने कनेक्ट होने के के लिए। लिए, या
तो मैं ये चाहूंगी आप यूं ही अपनी दिल की सुनते रहो, दिल आत्मा की सुने, मन और आत्मा आपको पहुंचा दे आपकी मंजिल पे। बच्चों के साथ थैंक यू मैम। हंसते और यूं ही मुस्कुराते रहें, और ऑफकोर्स गोल्डन सनराइज पर भी अपना प्यार और विश्वास बनाते रहें। थैंक यू मैम। बस बस आप अपना सपोर्ट, अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे रखते रहिए। वो तो रहेंगी हमेशा, मैं अपनी तरफ से तो हमेशा करती रहूंगी। बस आप लोग भी इसी तरह ग्रो होते रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बस कनिष्का। मैम और क्या चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे ग्रो होने की, तो हो ही जाएंगे। आज आपसे मैं ये सीखी हूँ, आज यही चीज मैं दूसरों को अप्लाई कर रही हूँ, उनको भी मैं यही सिखाती हूँ, हम्म। तो वो लोग भी आगे यही सीखेंगे। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और क्या, लाइफ एनर्जी इजीली को कट मूव जाएगी ऑन, मैम। हाँ, एनर्जी हाँ, को एनर्जी मूव ऑन को। होते रहना है। हाँ। हम्म। चलो, थैंक यू वेरी मच कनिष्का, एंड ऑल द व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, डिवाइन स्पेस विद डिवाइन सोल्स। यूं ही हमारे पास और हीलर्स और हीलीज आते रहेंगे, गोल्डन सनराइज के भी और भी। तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।